Hello students, so welcome to the Digital Pathshala KML. So in this video we are going to discuss about one of the important topic, and that is quantifiers. So we study it in English grammar and it is used in many sentences which we use. So what it tells, so we will talk about that. तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि दैट वेयर इट इज़ यूज्ड एंड देन इन व्हाट केसेस दैट वी कैन यूज डिफरेंट क्वांटिफायर्स. सो कम टू दिस नाउ, फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन दैट व्हाट इट मीन्स. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दैट क्वांटिफायर्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस क्वांटिटी. सो इट मीन्स दैट एनी वर्ड विच वी यूज़ इफ इट इज शोज एनी क्वांटिटी, अगर वो क्वांटिटी को शो करता है एंड इट कम्स बिफोर द नाउन मीन्स इट इज़ पुट अप बिफोर द नाउन, सो इट मेक्स सम चेंजेस. तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपके चेंजेस आ जाते हैं आपका नाउन के अंदर. सो इट कैन टेल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर noun, so where it is used. And after that you have to see that what are the conditions where it is used. So it is used with countable nouns or uncountable nouns. So we will talk about these two things also कि countable nouns क्या होते हैं आपके और uncountable nouns क्या होते हैं आपका. और there are some quantifiers, है ना, कुछ ऐसे words होते हैं आपके which can be used in both the cases. तो कुछ ऐसे हैं जो दोनों cases में आप use कर सकते हैं आपका. You can just see here that little is used in this, a little. So this is the quantifier which is put up before money. तो आप देख रहे हैं money से पहले quantifier रखा हुआ है a little. So it is telling about the quantity that because you can easily understand कि the quantity जो है आपका money की वो कितनी है आपका. So I have got a little money to see the fair. So when you see this thing, so it means that person does not have enough money. तो किसी के पास थोड़ी सी money है आपका. So we are using quantifier here and money is the noun in this case, you can see. So we use it in the different sentences. Now come to this thing that what are the different quantifiers which we use, है ना, कौन कौन से quantifiers हैं आपके जो हम use करते हैं. So you can see in this, so countable nouns and uncountable nouns. So firstly you have to understand that what are countable nouns and what are uncountable nouns. So nouns we all know that it can be any object, person, place or thing. So whatever it is that is noun. तो कोई भी चीज़ है वो noun आपका consider करी जाती है आपका. If that noun or we can say the object, if it is counted, if it is countable, अगर हम उसको count कर सकते हैं आपका in the numbers like 1 2 3 4 5 6, so it means that is countable. And if you come to this uncountable nouns, means that we cannot count them in numbers. हम उनको numbers में count नहीं कर सकते. Like you can see they are the different objects or which are given here or different things we can say. तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं. शुगर है, सॉल्ट है, फ्लोर है, क्लाउड है, मनी है, मिल्क है आपका. So these all are those things which cannot be counted in numbers. ठीक है, तो उनको हम काउंट नहीं कर सकते नंबर्स के अंदर. तो दैट्स वाई दे कम इन दिस कैटेगरी अनकाउंटेबल नाउन्स. सो फॉर डिफरेंट नाउन्स मीन्स अगर काउंटेबल हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट क्वांटिफायर्स विच वी विल यूज़. तो यहाँ आप देख सकते हैं दैट व्हाट आर द डिफरेंट क्वांटिफायर्स विच वी आर यूजिंग फॉर द काउंटेबल लाइक अ फ्यू, सम, सेवरल, मैनी. But if you come to this uncountable noun, so you can see here that a little, some, a lot of, much. So in this way you can use these quantifiers. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं that what which quantifier you will use with particular noun. तो आपको पहले डिटरमिन करना है कि that noun countable है या uncountable है आपका. Then you can see this thing कि that कौन सी quantifier हमें रखना होगा. Now come to this thing that you can see that there are some tick and cross. So that there are some of the quantifiers. कुछ quantifiers या कुछ words ऐसे हैं आपका that which can be used in both the cases. जैसे आप देख सकते हैं that any can be used with both, lots of, some can be used with both, a lot of can be used with both things, means countable या uncountable. But little cannot be used with countable. Likewise you can see that much also. सो इन दिस वे दैट यू हैव टू सी के कौन कौन से क्वांटिफायर्स आपके काउंटेबल में यूज़ हो रहे हैं, कौन से दोनों में हो रहे हैं, कौन से अनकाउंटेबल के अंदर आपके हो रहे हैं आपका. सो वी विल टॉक अबाउट दीज डिफरेंट क्वांटिफायर्स वन बाय वन. सो कम टू दिस नाउ. सो यू कैन जस्ट सी हियर दैट मैनी एंड मच. सो दीज आर टू क्वांटिफायर्स. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपका. So many is used with the countable nouns. So if you see that if any object or noun is countable, so then we use many in that case. But if something which is uncountable, तो आप उसके अंदर क्या यूज़ करेंगे आपका, you will use how much. So you can just look in this कि आप यहाँ देख सकते हैं कि that plural nouns. So that many can be used with plural only because many shows this thing that something is more than one.
तो अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा है देन वी आर यूजिंग मैनी, बट मच इज यूज विद द सिंगुलर नाउन, सो मीन्स दैट वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट थिंग, सो वी जस्ट यूज अ सिंगुलर वर्ड। तो हम जनरली एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, बिकॉज अगर आप काउंटेबल नाउन्स को देखेंगे सो वी कैन मेक देम प्लूरल और द सिंगुलर, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल विद दैट, है ना, समथिंग विच इज़ अनकाउंटेबल। सो आप यहाँ देख सकते हैं दैट यू कैन सी दैट चीज़, एफर्ट, है ना, मिल्क, नॉइज, रोप्स, दीज डू नॉट हैव प्लूरल्स, इनके प्लूरल्स नहीं होते हैं आपके, दैट्स वाई व्हाट वी आर डूइंग, so we generally use singular of them. Okay, we cannot say waters, we cannot say traffics, yeah. So we use singular. So in this case you can see that balls, blades, cars, so these are the plural words. तो यहाँ plural words हैं आपका, so that's why we are using. तो और one thing कि how many we make questions, so we use this how many and how much when we use any question. तो इफ़ यू आर पुटिंग, ठीक है, क्वेश्चन, इफ़ यू आर पुटिंग अप क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं आपका। तो इफ़ यू आर मेकिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू काउंटेबल तो आप हाउ मैनी का यूज़ करिए, इफ़ यू आर मेकिंग क्वेश्चन विद रिलेटेड टू दैट अनकाउंटेबल तो फिर आप हाउ मच का यूज़ करेंगे आपका। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, now that you have to understand the difference in this, that's a few and few, so that some people have confusion or some students have confusion, कुछ लोगों को confusion रहता है आपका कि that हम few का use करें या a few का use करें, so that you have to just understand very clearly कि if you add any article, so if you are using a article so it gives a positive meaning, तो यहाँ आप देख सकें ये कुछ ना कुछ positive meaning means something is there, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ है आपका, means that is not पॉसिबल कि कुछ हो ना आपका, बट इफ़ यू यूज़ फ्यू सो इट मीन्स दैट इट गिव्स अ नेगेटिव मीनिंग, सो इट माइट बी पॉसिबल, ये भी हो सकता है कि पर्सन कैन हैव फ्रेंड्स ऑल्सो और नॉट बी, है ना, सो बोथ द केसेज आर देयर, तो इट मीन्स दैट वी गेट अ नेगेटिव मीनिंग, अगर आपको नेगेटिव मीनिंग मिलता है सो देन वी यूज़ फ्यू, सो फ्यू डज नॉट मीन कंप्लीट नेगेटिव मीनिंग, बट इट कुड बी पॉसिबल, पॉसिबिलिटी हो जाती है कहीं ना कहीं, बट वन थिंग यू हैव टू सी कि फ्यू एंड लिटिल, सो वन थिंग ये है आपका कि दैट फ्यू इज़ यूज्ड विद द काउंटेबल नाउंस, फ्यू जो है या फ्यू जो है आपका, सो दीज आर यूज्ड विद द काउंटेबल नाउंस, बट इफ़ यू यूज़ अ लिटिल और लिटिल दीज आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउंस, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था पीछे आपका, सो लाइक शुगर, मिल्क, टाइम, ओके, सो वट एवर इट इज़ मनी, सो विद दैट यू हैव टू यूज़ दिस क्वांटिफायर लिटिल और अ लिटिल। सो सिमिलरली जैसे आ फ्यू एंड फ्यू में आपने देखा, सो लाइकवाइज दैट यू हैव टू यूज़ दिस अ लिटिल एंड लिटिल ऑल्सो, बट है ना, सिर्फ डिफरेंस ये है कि अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ आपका लिटिल और लिटिल का यूज़ होता है, ठीक है। सो इफ़ यू यूज़ अ लिटिल सो इट मीन्स इट गिव्स अ पॉजिटिव, मीन्स समथिंग इज देयर, है ना, सो यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स हियर ऑल्सो, सो इफ यू आर यूजिंग लिटिल ओनली, लाइक आई हैव लिटिल मनी टू स्पेंड दिस वीक, इट मीन्स दैट पर्सन डज नॉट हैव इनफ मनी, तो उसके पास इतनी मनी नहीं है कोई स्पेंड कर सके, सो कहीं ना कहीं हम लिटिल का यूज़ करें, इट गिव्स अ नेगेटिव मीनिंग, बट इफ़ यू यूज़ दैट सेम सेव्स अ लिटिल मनी each month, so that it means somebody is just saving, है ना, it can be 100 रुपीज़, it can 50 रुपीज़ even, है ना, तो 100 रुपीज़ भी हो सकते हैं आपका, बट आप यहाँ देख रहे हैं, आप फ्यू मीन्स आप शो कर रहे हैं आई स्पेंड अ फ्यू डेज, तो हो सकता है 4 डेज, 5 डेज, 3 डेज आपने स्पेंड करे हो आपका, बट जैस हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, सो मे बी इट कुड बी पॉसिबल कि उसका एक ही फ्रेंड हो आपका, या है ना 2 फ्रेंड हो, या ये पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं आपका। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग के दैट सम पीपल और सम स्टूडेंट्स हैव कन्फ्यूजन इन दिस, ठीक है, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है एंड वेयर वी यूज़ फ्यू एंड वेयर वी यूज़ सम। So one thing you have to see, because there is a difference of the degree, on the basis of degree these are the different quantifiers which we have to use, जैसे आप देख सकते हैं that few, some, many और a lot of, plenty of, several, so these are the different quantifiers, so these vary because of the degree, है ना, कितना अमाउंट या किस चीज़ का क्वांटिटी कितना शो कर रहे हैं आपका, तो उसके बेसिस पे हम इनको यूज़ करते हैं आपका। सो जस्ट लुक हियर दैट फ्यू इज़ लेसर देन सम, सो इफ़ समथिंग इज़ मोर देन फ्यू सो दैट इज़ सम, वहाँ पे आप सम का यूज़ करेंगे, बट इफ़ समथिंग इज़ ओनली 2, 3 और 4 देन यू कैन यूज़ दैट फ्यू, अगर आप सम का यूज़ करें इट मीन्स दैट समथिंग कैन बी काउंटेबल, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि ये काउंटेबल दोनों अनकाउंटेबल दोनों चीज़ों से यूज़ होता है, मीन्स दैट समटाइम्स यू से दैट आई हैव सम मनी, तो आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आपका दैट आई हैव सम पेंसिल्स, तो आप दोनों केसेस में इसका यूज़ कर रहे हैं आपका सम का, बट यू यूज़ फ्यू ओनली विद द काउंटेबल थिंग्स, है ना, आप ये नहीं कह सकते दैट आई हैव फ्यू वाटर, तो क्योंकि दैट इज़ अनकाउंटेबल थिंग है,
तो ये सिर्फ आपका काउंटेबल, तो ये एक मेन डिफरेंस आपको इससे समझ में आ जाएगा। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द नंबर्स, तो आप नंबर्स के बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो फिर आपको अगर क्वांटिटी लेस में है देन यू हैव टू यूज़ फ्यू, अदरवाइज यू हैव टू यूज़ सम इफ इट इज़ मोर देन दैट। Now come to this thing now that it can be used as a determiner, pronoun, adjective and noun. So I am just giving you examples. मैं आपको examples दे के समझाता हूँ. Like determiner, if you use as a determiner, so you can say this thing that that few friends visited at my home, or if you use a pronoun that few were present in the class, तो आपने वहाँ पे एक pronoun के तौर पे यूज़ करा आपका. But if you say that a few pencils, so you are just describing adjective, so that is the adjective of number, तो वहाँ पे आप यूज़ करें आपका. so in this way that you can use these different quantifiers. Now come to this many and few, so there is a difference between these also. so many is more than some, and we all know, अभी हमने पीछे देखा that few is lesser than some, so that if you see this thing, there's few, a few, then some, then many. तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं. इफ़ समथिंग इज़ लेस तो आप बिल्कुल आप फ्यू का यूज़ करेंगे, मीन्स काउंटेबल केसेस के अंदर आपका. बट इफ़ यू कम टू द नेक्स्ट लेवल तो वहाँ पे आप सम का यूज़ करेंगे. इफ़ यू कम टू द नेक्स्ट लेवल मीन्स बियॉन्ड द सम, देन यू हैव टू यूज़ मैनी. ओके, now come to the sum and any. so some people or some students have confusion in these two things also. तो दोनों में क्या डिफरेंस है आपका. so sum can be used with countable or uncountable, तो ये सबको पता है आपका. and now we have to come to any. so any can be used only in two cases. if you make any question, so when you are putting up a question, तो अगर आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो फिर आप any का यूज़ करते हैं आपका. like if I say that is there any book which I can take from you, is there any pencil which I can take from you. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं that you can use any also. But if you see negative things, so that you can look in this that there are not any books in the book, so it gives a negative meaning. तो आप negative अगर सेंस देते हैं सेंटेंस के अंदर तो उस केसेस के अंदर भी आप any का यूज़ कर सकते हैं आपका. नाउ कम टू द a lot of, ठीक है. सो a lot of can be used with both means countable as well as uncountable. तो ये दोनों केसेस में यूज़ हो सकता है. जैसे आई कैन से दिस थिंग दैट आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव लॉट ऑफ देयर आर लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. तो आप उस तरीके से आप देख सकते हैं दैट वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सो मीन्स इट इज़ अनकाउंटेबल. देयर आर लॉट ऑफ एग्स, इट इज़ काउंटेबल. देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी, तो आप यहाँ देख रहे हैं दैट इट इज़ अनकाउंटेबल. बुक्स आपका क्या है, काउंटेबल है आपका. तो दैट यू आर यूजिंग विद ऑल, ठीक है, मीन्स काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं. तो इसको आप ऐसे यूज़ करेंगे इस क्वांटिफायर को आपका. नाउ कम टू द एक्सरसाइज, तो अब आप एक्सरसाइज को देखेंगे आपका. सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड दीज डिफरेंट क्वांटिफायर्स. नाउ यू हैव टू जस्ट ट्राई to use them. That he has not got dash friends here, so that negative sense is coming. so when you get a negative sense, so you what you use, आप हम क्या यूज़ करेंगे, so we use any. now come to the second, we have got dash butter in the fridge, so that you can use some also, a little also. so because that is the quantity, it can be butter, so that's why you can use a little. so we have got a little butter in the fridge. so now come to the next, that Julio wants dash ice cream for lunch. so आप यहाँ पे आप सम का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ क्वांटिटी. सो सम जो है क्वांटिटी जो आपकी काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल दोनों केसेस में यूज़ हो सकता है आपका. सो मीन्स इट्स गिव्स अ पॉजिटिव मीनिंग ऑल्सो. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट ऑस्कर इज ईटिंग टू डैश लेटली. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं दैट इट इज़ क्वांटिटी, तो बट इट इज़ अनकाउंटेबल, तो आप यहाँ पे मच का यूज़ करेंगे आपका, है ना. मे बी इट कैड बी फूड ऑल्सो, तो हम ये तो कहेंगे दैट ही इज़ ईटिंग टू फूड, सो ही इज़ ईटिंग टू मच फूड. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट जॉर्ज हैज़ फाउंड डैश गुड पीपल. सो यू कैन यूज़, है ना, गुड पीपल देयर. सो पीपल आपका समझ में आ जाता है कि दैट इट इज़ नॉट पर्सन, सो पीपल मीन्स मोर देन वन. सो यहाँ पे इट इज़ काउंटेबल, सो यू कैन यूज़ मैनी हियर, है ना. सो इन दिस वे दैट यू कैन यूज़ सो मैनी डिफरेंट क्वांटिफायर्स अकॉर्डिंग टू द condition. okay, so I hope that you have understood now. so if you have liked this video, so please like, share and subscribe this channel. so thank you so much. Bye everyone.